Let us see our next question. Ford Limited is presently operating at 60% capacity, यानी वो लोग जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे 60% वो लोग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, and is producing 36,000 packets of the snacks foods and proposes to increase the capacity utilization in the coming year by 1/3 over the existing level of the production. यानी नेक्स्ट ईयर में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो हम लोग 1/3 से इंक्रीज करें. So we understand it is 36,000 into 1 by 3, that comes to 12,000. So 36 plus 12, that comes to 48,000. यानी नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 48,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे. The following data has been supplied. Present profitability statement is as under. Cost of the raw material 1,44,000. Direct wages, variable overhead, fixed overhead, and sales value. Raw material holding period is 1 month. WIP holding period is again 1 month. Average payment period is 3 months. Finished goods holding period is 1 month. Average collection period is 2 months. Average payment period for expenses is 1 month. We are going to keep the cash balance of 19,500. Wages and overhead accrue evenly throughout the production cycle. So these expenses accrue evenly throughout the production cycle. यानी ये दोनों expenses साथ साथ में incur होता है, इसका मतलब ये है. We know that say as far as यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं that so the overhead is recovered on the basis of the direct wages. You are required to prepare a projected statement of the profitability at new level. यानी जो हमारा नया प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल है 48,000, उसके ऊपर हमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट्स हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया दैट 36,000 में 1/3 ऐड करो, यानी क्या होगा 12,000 ऐड करो तो 48,000 हमारा नया लेवल हो जाएगा. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, 36,000 डिवाइड बाय 60%, वो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 60,000, और फिर ये 60,000 का 80%, ऐसा करके 48,000 कैलकुलेट करते हैं. ये 80% का कैलकुलेशन कैसे है फ्रेंड्स, 60 प्लस 1/3 इंटू 60, यानी क्या 20% ऐड करने का ऑन द एग्जिस्टिंग 60. दैट इज द वे सो वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द न्यू 80% फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ आंसर. ऐसा करके भी हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. Please write an answer of the question along with me. Working note number 1, calculation of number of units to be produced and sold at new activity level. In that write down current plus increase. प्रेजेंटली हम लोग कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, 60,000 प्लस 60,000 into 1/3, यानी क्या होगा 60 plus 20, that comes to 80,000 number of units.
I'm sorry, currently it is 36,000. That is the way we understand that. Say we are going to have like the production and sales of 48,000 number of units, क्योंकि जो इंक्रीज 1/3 दे रखा है वो एग्जिस्टिंग के ऊपर दे रखा है. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है that say you are required to prepare a projected statement of the profitability at new level. So we understand that say answer of the first question. In that calculation of the profit or loss at new level, वहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 48,000 नंबर ऑफ यूनिट्स. कॉलम नंबर 1 particulars and column number 2 amount. Now we understand something like this. जैसे कि ये 1,44,000 रुपीज का कॉस्ट है 36,000 के लिए, तो 48,000 के लिए क्या होगा? सेम वे फॉर द डायरेक्ट वेजेस, सेम वे फॉर द वेरिएबल ओवरहेड. जबकि हमारा फिक्स ओवरहेड है ना, वो तो सेम ही रहेगा. वो 36 था, 36 ही रहेगा. Why? Because we understand that so the total fixed cost is not going to increase. ऐसा करके हमको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो फिक्स और वेरिएबल का जिस हिसाब से हम लोग लॉजिकली समझते हैं उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन. इन दैट 1,44,000 divided by 36,000 into 48,000. That is the way we will have the consumption of the raw material. That comes to 1,92,000. Next, it is the direct wages. That is 72,000 divided by 36,000 into again 48,000. It would be 96,000. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड. In that it is 72,000 divided by 36,000 into 48,000. Same 96,000. Next is the fixed overhead. फिक्स ओवरहेड का अमाउंट सेम रहेगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 36,000. ऐसा करके फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. $192 plus 96 plus 96 again plus 36. It is 4,20,000. सेल्स वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 4,32,000. तो वो फ्रेंड्स 36,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर होगा. तो 48,000 के ऊपर कितना, वैसा करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे.
क्योंकि हमारा बेसिक अजम्पशन ऐसा रहता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट and total fixed cost will remain same. That comes to 5,76,000. Let us say the sales is A and total cost is B. तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस ऐसा आ जाएगा. So it is A minus B, 1,56,000. This is the way the profit or loss will be calculated at new activity level. तो ये हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया एट द न्यू एक्टिविटी लेवल. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. I request all of you to prepare the statement for the working capital requirement except for WIP. WIP को छोड़ के आप remaining current assets और current liabilities का calculation करो and put your answer in the chat box. So let us have understanding that say how to calculate the working capital requirement at new level. So answer of the second question. Statement of working capital requirement at new level. Now friends, उसमें आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 1 महीना. इट मींस दैट से जो भी पूरे साल का कंजम्पशन है डिवाइड बाय 12 इनटू 1 महीना. फिर एवरेज पेमेंट पीरियड है 3 महीना. तो जो भी हमारा परचेस है डिवाइड बाय 12 इनटू 3 मंथ्स. WIP होल्डिंग पीरियड है 1 महीना. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन साइकिल 1 महीना. फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड दे रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है. तो COGS डिवाइड बाय 12 इनटू 1. देन कैश कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 12 इनटू 2. एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 12 इनटू 1. कैश बैलेंस तो एज इट इज ही रख देंगे. That is the way we are required to prepare the working. So I request all of you to write down answer along with me. हम लोग शुरू कर रहे हैं रॉ मटेरियल के स्टॉक से. That is raw material consumption divided by 12 months into raw material holding period. What is the consumption? It is 1,92,000 divided by 12 months into raw material holding period होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 महीना. So we understand that it is 16,000. नेक्स्ट WIP, उसका वर्किंग कैसे किया जाएगा उसके लिए मुझे आपको एक वर्किंग नोट समझाना पड़ेगा. तो उसके लिए अभी स्पेस छोड़ देते हैं. फिनिश गुड्स, उसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स? COGS डिवाइडेड बाय 12 into finished goods holding period. COGS हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 4,20,000 रुपए. डिवाइडेड बाय 12 months into finished goods holding period दे रखा है 1 महीना. So into 1 month. $35,000. Next, debtors. उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स
divided by 12 months into average collection period. कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना है? 4,20,000 है. Divided by 12 months into average collection period. हमको क्वेश्चन में दे रखा है it is 2 months. So we understand 4,20,000 into 2 divided by 12. That comes to 70,000. Cash balance, it is 19,500. तो ऑलमोस्ट सारे करंट असेट्स आ गए. अभी क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, उसके लिए क्या किया जाएगा? अगेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज एनुअल क्रेडिट परचेस divided by 12 months into average payment period. That is the way the creditors for raw material. Annual purchase कैसे किया जाएगा? Closing plus consumption minus opening divided by 12 into average payment period. जैसे हम लोग समझते हैं कि ऑनगोइंग कंसर्न के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है? सेम होता है. तो वो एक दूसरे के सामने क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो जो कंजम्पशन है उतना ही हम लोग परचेज लेके आंसर कैलकुलेट करेंगे. सो द कंजम्पशन इज एन अमाउंट ऑफ 1,92,000. तो 1,92,000 divided by 12 months into average payment period. एवरेज पेमेंट पीरियड कितना दे रखा है? 3 महीना. सो इंटू 3 months. So 192 into 3 divided by 12. It comes to 48,000. Next. Creditors for expenses. उसके लिए क्या किया जाएगा? Similar working is required to be prepared. It is direct wages plus variable overhead plus fixed overhead. जो भी टोटल आएगा divided by 12 months into average payment period. अच्छा, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है फ्रेंड्स? डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 96,000. वेरिएबल ओवरहेड का अगेन 96,000 और फिक्स ओवरहेड का 36,000. तो ये तीनों एक्सपेंसेस का हम लोग टोटल करेंगे. 96 प्लस अनदर 96 प्लस 36 whole divided by 12 months into average payment period. We can see that the average payment period for expenses दे रखा है 1 महीना. So क्या करेंगे? into 1 month. (96 plus 96 plus 36 divided by 12). It comes to an amount of 19,000. This is the way we are required to consider. So now at this point of time we have done everything except for WIP. अभी हम लोग WIP का समझते हैं.
So now the last working that we are required to do is WIP का calculation. वो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं. So just you keep space of 2-3 lines more and then you write new heading, calculation of WIP, that is work in progress or work in process. That is what we are going to now make the calculation. I want somebody of you to write in the chat box कि ये क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो हमको चाहिए फॉर WIP वैल्यूएशन. Put your answer in the chat box. फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कंप्लीशन स्टेज नहीं दे रखा है जो यूनिट्स प्रोसेस में उसका, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंप्लीशन एंड इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीशन. यानी मटेरियल का कितना कॉस्ट कंप्लीट हुआ है, वेजेस का कितना हुआ है, ओवरहेड का कितना हुआ है, वो कंप्लीशन स्टेज का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है जो हमको यूजुअली दे रखते हैं. सो फ्रेंड्स ओवर हियर WIP का वैल्यूएशन के लिए देखो, जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखा है that there are 3 expenses that we are incurring: raw material cost, direct wages cost and overhead cost. raw material का कॉस्ट कितना है? It is an amount of 192. Divided by 12 months into 1 month. डायरेक्ट वेजेस का कितना है? 96,000. So 96,000 divided by 12 months into 1 month. उसके बाद है ओवरहेड का कॉस्ट 96 and 36, 96,000 plus 36,000 divided by 12 months into 1 month. फ्रेंड्स इतना जो मैंने लिखा है ना, that is in respect of, listen carefully, the units which are in process. जब वो फुल्ली कंप्लीट होगा ना, at that point of time इतना खर्चा होगा. जो भी यूनिट्स प्रोसेस में होता है ना, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जब पूरा कंप्लीट होता है ना, तो इसका जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा ना, वो आंसर होता है. तो यूनिट्स प्रोसेस में उसका मतलब क्या हुआ कि इसका काम पूरा नहीं हुआ है, तो कितना काम कंप्लीट हुआ है उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देना चाहिए था, वो जो नहीं दे रखा है. इसलिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं that say for raw material completion stage is 100%, for wages it is 50% and for overhead it is 50%. ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं and with that say we are doing answer. Now you may have a question, सर ये आपने 100-50-50 जो अज्यूम किया उसके जगह क्या मैं और कुछ अज्यूम कर सकता हूँ? The answer is yes. You can make any other assumption. जैसे कि you may make assumption 80-40-40. You may make assumption of let us say 70-60-60. आप ऐसा कुछ भी assume कर सकते हो. The only thing that say you cannot assume is 100% for all, because 100% for all में क्या हो जाएगा? ये तो finish कुछ हो जाएगा. 0 for all क्यों? नहीं तो वो काम ही शुरू कहाँ हुआ है. So you cannot make this kind of absurd assumption. ऐसा assumption नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा assumption कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू मे हैव, सर हम लोग वेजेस और ओवरहेड का अलग अलग अज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? गिविंग रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू इवनली थ्रू आउट द प्रोडक्शन साइकिल. ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए हम लोग ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि दोनों का कंप्लीशन स्टेज अलग अलग होगा. अगर ये स्टेटमेंट नहीं दे रखा होता ना, देन इन दैट केस यस यू कैन मेक दैट असम्पशन. बट मेरा सजेशन ऐसा है दैट से डोंट बी सो मच एक्सपेरिमेंटल इन एग्जामिनेशन एंड सिंपली मेक असम्पशन ऑफ 100, 50 and 50. देखो ये सब मैं क्वेरीज आपका सॉल्व कर रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं,
ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, वो मैं आपका जो क्वेश्चंस होगा ना वो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। बट मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है दैट से डोंट बी सो मच एक्सपेरिमेंटल इन एग्जामिनेशन एंड सिंपल मेक एन अजम्पशन ऑफ 100, 50 एंड 50। तो क्या होगा 1,92,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 यानी 16,000 रुपए। 96,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 यानी कि 4,000 रुपए। 96 प्लस 36 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 तो 5,500 रुपए। 16 plus 4 plus 5,500. So the working capital requirement that we have is 25,500. I'm sorry, this is the WIP valuation. तो आपका WIP का valuation हो जाएगा 25,500 रुपए. This is the way we have to do it. Please write down this WIP working note. फिर मैं आपको उसका note लिखवाता हूँ. So please write down a note. In respect of WIP valuation, comma, we have not been given information for completion stage of direct material, comma, wages and overhead, full stop. We have assumed that it is completed to the extent of 100%, comma, 50%, comma, 50% respectively. Full stop. With paragraph write down. Making any other assumption is also acceptable. Full stop. Usually assume 100, 50, 50. Full stop. For wages and overhead, it has been given that those expenses accrue evenly throughout the production cycle. Comma, so they are taken as same completion stage. Full stop. अभी फ्रेंड्स ये वर्किंग हम लोग पूरा करेंगे। WIP का वैल्यूएशन है 25,500, तो 16,000 प्लस 25,500 प्लस
35,000 plus 70,000 plus 19,500 minus 48 minus 19,000, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर आ गया 99,000। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज 99,000। ऐसा करके हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे पूरा हो गया, बट स्टिल एक क्वेश्चन मेरे को कई बार आता है स्टूडेंट्स का, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा मुझे क्वेश्चन आता है कि सर मेरे हिसाब से जो आपने परचेज का कैलकुलेशन किया ना वो गलत है। स्टूडेंट का कहना कुछ ऐसा होता है कि सर अगर मैं रॉ मटेरियल का स्टॉक अकाउंट बनाता हूं तो क्रेडिट साइड पे आएगा कंजम्पशन, कंजम्पशन इज 1,92,000। क्रेडिट साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 1 महीना, तो 1,92,000 डिवाइड बाय 12 into 1, so over here 192 divided by 12 into 1, that comes to 16,000। वैसा का वैसा अगर हम लोग ओपनिंग करेंगे सर, देन ओपनिंग स्टॉक इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में हमारा कंजम्पशन कितना था 1,44,000 सर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो डिवाइडेड बाय 12 into 1 वंस अगेन, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा सर 12,000 रुपए। तो परचेज जो आपने लिखा है 1,92,000 और आपने क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन किया है वो मेरे हिसाब से आता है 1,96,000। ऐसा करके स्टूडेंट्स का कई बार क्वेरी होता है। नाउ गिविंग रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, देखो ये बिल्कुल सही है कि इस हिसाब से जाएंगे ना तो परचेज 196 आएगा न कि 192। और जो मैंने वर्किंग आपको करवाया उसमें मैंने क्या किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है, इसलिए कंजम्पशन ही परचेज करके मैंने आपको आंसर करवा दिया। तो वी अंडरस्टैंड दैट से टेक्निकली द वर्किंग दैट से आई मेड अबाउट इज रॉन्ग वर्किंग। हाउएवर इंस्टीट्यूट का कहना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानते हैं कि ये जो 36,000 ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमारा ईयर था, वो था लेट अस से 2020-21, और ये 48,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमारा एक्टिविटी लेवल होगा 2021-22। और इस साल जो हमारा परचेज होगा वो होगा 1,96,000। अच्छा, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से अगर मैं 2022-23 उसका परचेज कैलकुलेट करता हूं सपोज, देन कैन वी से दैट से जो वर्किंग मैंने किया वो सही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा 16,000 ओपनिंग स्टॉक, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक होगा 16,000, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा 16,000, तो जो हमारा कंजम्पशन है वही का वही हमारा क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। एंड वी अंडरस्टैंड दैट से एक साल के लिए ऐसा होगा, पर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा होगा। तो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जो है, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर्स दिए उसमें उन्होंने क्या बोला है, ये टेम्पररी चेंजेस को आप इग्नोर करो एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। यानी ये जो ट्रांजिशनल चेंजेस है ना उसको आप जाने दो, एंड कंसीडरिंग दैट से हमको लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल का कितना जरूरत पड़ेगा उसको दिमाग में रख के यू हैव टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ऐसा करके हमको ये कैलकुलेशन करना है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। I just want to dictate a note for this point to you. Write on a journal note. In this question, comma,
information have been given that there is a change in activity level. Full stop. So, opening stock of raw material and closing stock of raw material would be different. Full stop. Hence, purchase and consumption would be different. Full stop. In this case, we are ignoring this transitional phase and from second year onwards in bracket write down second year from new activity level comma we will compute working capital requirement. Full stop. In that case, opening and closing stock in bracket write down all types of stocks. Would be same. Full stop. Hence, consumption equals to purchase. Full stop. ऐसा करके हमको आंसर करना है. So small summary of the working that we have done. ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमको ऐसा दे रखा है that say we are going to say increase our activity level, ऐसा दे रखा है हमको. तो सबसे पहले हम लोग कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे वो कैलकुलेशन किया. बी केयरफुल फॉर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जिसमें ऐसा दे रखा है हम लोग 1/3 से इंक्रीज करेंगे ओवर द एग्जिस्टिंग 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंक्रीज नहीं है. ठीक है. अगर ये पहला वर्किंग नोट गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा. फिर सिंपल हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एट न्यू एक्टिविटी लेवल. यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक उन सबको कंसीडर नहीं किया है क्योंकि अगेन हमको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा उसी का कैलकुलेशन करना है. दैट इज द रीजन से स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे इग्नोर किया जाता है. So the first statement is very simple.
स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट द न्यू लेवल जो हमको करना है, इन दैट रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स एंड सो ऑन। WIP का वर्किंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे कंप्लीशन स्टेज नहीं दे रखा है, तो एज पर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर वी आर मेकिंग एन अजम्पशन रिगार्डिंग द कंप्लीशन स्टेज। डेटर्स का वैल्यूएशन कैश एंड बैंक दे रखा है, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, उसमें इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग और ओपनिंग को सेम माना गया है। हमको पता है कि वो सेम नहीं होगा, उसके बावजूद क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर से हमको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ऐसा हम लोग दिमाग में रखते हैं। क्रेडिटर्स पर एक्सपेंसेस, उसमें सारे एक्सपेंसेस का टोटल डिवाइड बाय 12 into 1, और लास्ट में हमारा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन हो जाएगा। WIP का वैल्यूएशन एज यूजुअल दैट वी डू, एंड सो दिस इज द कंप्लीशन स्टेज। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए हमको एक छोटा सा नोट लिख देना है कि हमने इस हिसाब से अज्यूम किया है, दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द नोट। और ये एक इंपॉर्टेंट वर्किंग है आपके लिए समझना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का इसी में कंफ्यूजन होता है जब वो लोग रिवीजन करते हैं।